चाहिए था। उसके लिए हमारी सब पूरी मीडिया टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसकी तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाएं और सरकार भी इसकी तरफ थोड़ा सोचे। देखिए, ये मैं बिल्कुल उनका बेटा हूँ, स्वाभाविक है मेरी इच्छा ज़रूर होगी। उनके जितने समर्थक हैं, उनके जितने चाहने वाले हैं, उनकी इच्छा भी है। बट मैं इस बात में भी मैं मानता हूँ कोई चीज़ अगर मांग के मिली तो क्या मिली। मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी का जो लगाव मेरे पिता के साथ था और इस देश के प्रति जो उनके कार्य रहे हैं, जो उनका समर्पण रहा है, मुझे लगता है आज नहीं तो कल जिस सम्मान के वो हकदार हैं, बिना मांगे वो उनको मिलेगा। Mr. Paswan, you kicked off the food processing 3-day event, very grand indeed, and you had conversations with more than 100 CEOs, and they did raise a few concerns regarding GST, ease of doing business. Could you talk a little bit about that, and will we see that kind of reduction going forward? Well, I don't know whether we'll see that kind of reduction happening or not, but then these were certain issues which I just said. I want to be that link between the industry and the government. And through World Food India, that's exactly what we try to do. Their concerns, their issues were raised, were put across in front of the concerned authorities. Now eventually it's for those authorities, those departments to take a final call. As a minister, I'm trying my best to resolve all the concerns that the people of my industry faces today. Which are the top 5 next food processing states that India will witness going forward? Because you want, even at the state levels, a lot of food processing hubs to come in. Which are the top 5 ones, would you say? Well, eventually I'm focused on the complete nation. To be very honest, as I was just mentioning in my speech also, India is a land of diversity, and that is the beauty of my country. Right from top north to down south, east to west, there's so much of variety, even when it comes to food products, when it comes to our way of, to our style of eating also, our choice of eating, what we eat in north globally. So yes, I mean, rather than focusing on particular state, definitely few states which are agro prone, pro states, whether it's Punjab, my state, Bihar, these states definitely will always be priority. But then having said that, northeastern states, the nation as a whole. As a consumer also, there's one key issue, which is the maximum residual element that we have in food factors, and a lot of our products get rejected on the global level. How are we planning to match that? So yes, that's and food processing and this industry working together. That is something collectively with the whole of the government approach. We are trying to work on that. As I mentioned, my Prime Minister also has a similar thought when it comes to this, that Indian standards eventually should be recognized as the global standards, as recognized as world standards. So that is something what we are working towards. Where do you think the next from Deloitte to kindly join us on the stage for the launch of the FICCI Knowledge Report. And industry leaders from retail, FMCG, e-commerce, प्रेस मीडिया के तमाम साथी, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ to give me an opportunity to be here. It was a difficult one though. ज्योति जी को इस बात का एहसास होगा. Actually, it's my father's, कल उनकी चौथी पुण्यतिथि है 8 तारीख को. It's been 4 years since he left us, and me and my whole family, we were scheduled to fly back to my state, Bihar. और गांव में हम लोग कार्यक्रम करते हैं हर साल बड़े स्तर पर. उनको हम लोग जिस दिन वो हमें छोड़ कर गए उनको याद करते हैं. तो उसके लिए we all were to fly back to Bihar, but इतने प्यार से मुझे यहाँ पर बुलाया गया और जब आप सबके बारे में जानकारी मिली, I would not have missed this opportunity to come and interact with you. जब से मुझे केंद्र सरकार में मेरे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जिम्मेदारी मिली, मैंने हमेशा और निरंतरता में प्रयास किया है. और आज भी मेरा यहाँ आने के पीछे का लक्ष्य यहाँ पर आकर कोई भाषण देना, कोई ज्ञान देना कतई नहीं. आप सब अपने अपने क्षेत्र के स्टॉलवर्ड्स हैं.
दशकों आप लोगों ने बिताए हैं। आप लोगों से बेहतर आप लोगों के क्षेत्र के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है, लीस्ट ऑफ ऑल अ पॉलिटिशियन हु हैज गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट यू ऑल आर डूइंग। तो कोई ज्ञानबाजी देने के उद्देश्य के साथ नहीं, बट इस सोच के साथ कि मैं एक माध्यम बन सकूं, एक कड़ी बन सकूं सरकार और इंडस्ट्री के बीच की। आज जब मेरे प्रधानमंत्री एक विकसित भारत की सोच रखते हैं, जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की हम लोग सोच रखते हैं, तो ऐसे में आप ही हैं वो सब जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। आप ही वो हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिसकी नींव पर विकसित भारत का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में आप लोगों की सोच, आप लोगों की चिंताएं, आप लोगों के सुझाव सरकार तक पहुंच सके, उसका माध्यम बनने की सोच के साथ आज मैं यहाँ पर आया। ऑल्सो विद अ सोच, ये वही मंच है जिस पर मेरे पिता आ चुके हैं और हम नेताओं के बारे में आई मीन दिस इज रियली सरप्राइजिंग एट टाइम्स। मैं अभी हर्षी से बात कर रहा था एंड वेरी प्राउडली वाज सेइंग आई एम सेकंड जनरेशन in the business, and we all say very proudly that we are third generation, fourth generation in the family business, but that's not the case. I mean politicians are not, हम लोग इतने blessed नहीं होते हैं कि हम लोग इतने खुलेआम इस बात को बोलेंगे कि तुरंत एक nepotism का टैग हम लोग के साथ जुड़ता है। बट ये वो मंच है जिस पर मेरे पिता आ चुके हैं और उनका भी यही प्रयास रहा कि किस तरीके से यहाँ के सुझावों को, यहाँ की चिंताओं को हम लोग सरकार के समक्ष रखकर उसका समाधान हम लोग ढूंढ सकें। आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ, कल मैं ज्योति जी से जब मुलाकात हुई, चर्चा हो रही थी आज के कार्यक्रम की, उस वक्त मैंने यही कहा था कि मोर देन टॉकिंग, अपनी बातों को बताने से ज्यादा आप सबकी बातों को मैं सुनना चाहूँगा। आज संभवतः वो समय मेरे पास नहीं हो पाएगा कि मैं उतना देर आप सबके साथ बिता पाऊँ, बैठ पाऊँ, बिकॉज इवेंचुअली आई हैव टू गो बैक बिकॉज ऑफ पापा, कल उनका जो कार्यक्रम, आई हैव टू गो बैक। बट मैं ज़रूर आप सबके फीडबैक्स, आप सबके कमेंट्स, और मुझे खुशी है इस बात की कि ये इस तरीके के आयोजन हम लोग करते हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि जब ये आयोजन होते हैं तो इसको सिर्फ मीट एंड ग्रीट से ज़्यादा इसके मैक्सिमम आउटकम्स हम लोग कैसे ले सकें, कैसे हम लोग एक दूसरे पे आइडियाज़ बाउंस कर सकें, कैसे एक दूसरे के साथ नई नई टेक्नोलॉजी जो संभवतः आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में कर रहे हैं, दूसरे साथियों के साथ कैसे हम लोग शेयर कर सकें। आपकी कंपनी में संभवतः कोई ऐसा स्टार्टअप, कोई ऐसा नया इनोवेशन होगा जो संभवतः दूसरे के को लाभ दे सके। सो लेट्स यूज दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज दीज आइडियाज, न्यू इनोवेशंस, न्यू स्टार्टअप्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, everything that we can bounce with each other, so that together कलेक्टिवली हम लोग उस लक्ष्य की तरफ हम लोग पहुंचे जिस सोच के साथ आज से 10 साल पहले मेरी सरकार ने मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े फैसले, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किए रिफॉर्म्स के साथ, और इसी लक्ष्य को रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसी लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे चलते गए। इस बात को कहने में मुझे कतई कोई संदेह नहीं है, नॉट बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, पर पिछले 10 सालों में देश ने जो नई ऊंचाइयां देखी हैं, अभी कुमार साहब कई क्षेत्रों का जिक्र कर रहे थे, गति शक्ति के माध्यम से हो, रोडवेज का ये जिक्र कर रहे थे, कई क्षेत्रों का इन्होंने जिक्र किया, एंड व्हिच इज ट्रू। आज की तारीख में नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली, मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जब मैं बोलूं तो जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये हम लोगों ने मुकाम पिछले 10 सालों में हासिल किया और इसका श्रेय मैं आप सबको भी दूंगा। आप सबकी वजह से ही हम लोग इस मुकाम तक पहुंच सके कि आज हम लोग एक विकसित देश होने के लक्ष्य को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। कई ऐसी पीढ़ियां, कई ऐसे दशक हम लोगों ने बिता दिए जहां पे वी आर डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन। एंड एज अ यंगस्टर मेरे दिमाग में ये सवाल कौंधते थे कि भैया कब तक हम लोग एक डेवलपिंग नेशन ही बन के रहेंगे, कभी तो हम लोग एक डेवलप कंट्री, एक विकसित देश के निर्माण की हम लोग कम से कम कल्पना तो करेंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की, वो लक्ष्य हम लोगों ने रखा 2047 का, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम लोग इस अमृत काल के खूबसूरत
पड़ाव से हम लोग गुजर रहे हैं, तो उसमें हर किसी का योगदान, हर किसी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस भागीदारी में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए भी मेरी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और आज आप लोगों के बीच उसी विश्वास को बढ़ाने आया। आप लोगों के क्षेत्र में किसी तरीके की कहीं कोई समस्या, किसी तरीके की कहीं कोई परेशानी, ये वो मंच है। आप बताएं, चर्चा करें, मेरे पास तक लिखित तौर पर अगर आप भिजवाएंगे, मैं जरूर उसको हर उस उचित मंच तक लेकर जाऊंगा जहां पर आपके विरोध में अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है। जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए, मैं खुद, मेरे पास प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, पर हर वो व्यक्ति जो सीधा मेरे मंत्रालय के विषयों के साथ जिनका जुड़ाव है, उनको भी मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सोच है, और अभी जैसा मेरे इंट्रोडक्शन में मैम ने कहा कि हम लोग को देश में अपनी भूमिका को पूरा करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। यही सोच मेरी, मेरे सरकार, मेरे मंत्रालय, मेरे प्रधानमंत्री की भी है। जब मैं फूड प्रोसेसिंग की बात करता हूँ कि आने वाले दिनों में कैसे भारत को हम लोग एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग प्रस्तुत कर सकें, इस दिशा में हम लोग कार्य करने का प्रयास करें। हम लोगों के पास वी हैव गॉट एवरीथिंग इन अबंडेंस, बट इसको कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। आज की तारीख में हमारे देश की आबादी जो कई बार दुनिया ने हमें बताने का प्रयास किया कि संभवतः वो हमारे लिए लायबिलिटी हो सकती है, बट कैसे हम लोग उसको एसेट में कन्वर्ट करें, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य करने का हम लोग प्रयास करें। आज की तारीख में इंडिया एज अ मार्केट, नेशनली तो खैर हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता ही है, बट ग्लोबली भी आज की तारीख में बिकॉज ऑफ अ पॉपुलेशन कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। बट ये पॉपुलेशन हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से भी आप देखें जिस तरीके से इट्स वेल स्प्रेड अक्रॉस द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड ऑफ द ग्लोब, ये डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है अलग अलग पदार्थों के को निर्माण करने की, नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं हमारे देश में। आप टॉप नॉर्थ टू डाउन साउथ ले जाइए, आप ईस्ट टू वेस्ट आप चले जाइए, इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटीज हैं कि हर एक सेक्टर में मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनको क्रिएट करने के। कुमार साहब अभी जिक्र कर रहे थे, रेजर का जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग तरीके के उन्होंने इन्वेंट किए। भले रेजर से मेरा कोई संबंध नहीं है, और इन्होंने बताया कि रेजर के अलावा ट्रिमर्स के भी ऑप्शन है मेरे पास। सो बहरहाल, पर उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन स्किन के हिसाब से, सो ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। और नेशनली अगर भारत की कंपनी होने के नाते अगर हम अपने देश की विविधताओं का ही लाभ नहीं उठा पाए तो क्या फायदा। और ये विविधताएं, ये डाइवर्सिटी हमें अपॉर्चुनिटी देती है हमें हमारी कंपनी में ग्रो करने की। और इसी सोच के साथ इस फोरम का निर्माण किया गया है। मैं चाहता हूं कि आज दिन भर का एक कार्यक्रम जो चले उसमें जितने भी सेशंस आप लोगों के हों, जब हम लोग इसको मेस्मराइज बोलते हैं तो इवेंचुअली व्हेन वी गो बैक इट शुड बी एन मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। इस उम्मीद के साथ ये एक्सपीरियंस ना सिर्फ आप सबके लिए बल्कि मेरे लिए भी और मेरी सरकार के लिए भी उतना ही लाभदायक होगा। मैंने फूड प्रोसेसिंग का जब मैं जिक्र कर रहा था, एक दो चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए इनोवेशंस को हम लोग इनकॉर्पोरेट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसी बार के बजट में आपने देखा होगा माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इरेडिएशन के प्रावधानों का जिक्र किया है। नाउ दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। जब हम लोग फूड प्रोसेसिंग से के सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी हमारे लोग की प्राथमिकता होती है कि कैसे हम लोग वेस्टेज को मिनिमाइज करें, वैल्यू एडिशन करते हुए। वैल्यू एडिशन के साथ साथ हमारी वेस्टेज किस तरीके से मिनिमाइज हो, उस दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़ें। और हर बीते समय के साथ दुनिया के किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी नई टेक्नोलॉजी का इजाफा हो रहा है, उसको अपनाते हुए हम लोग कैसे आगे बढ़ सकें। इरेडिएशन इज वन ऑफ दैट। 50 इरेडिएशन यूनिट्स आने वाले दिनों में मेरे मंत्रालय के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। फूड टेस्टिंग लैब, गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कहीं समझौता नहीं हो। ये ना सिर्फ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र के लिए
बल्कि मुझे लगता है हर उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इवेंचुअली आने वाले दिनों में इंडियन स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड बने, हम लोगों के मानक को दुनिया कबूल करे, उस दिशा में हम लोग को कार्य करना। आने वाले दिनों में एक ऐसे समय के, एक ऐसा कालखंड आए जहां पे लोग आंख मूंद कर इस बात को बोले कि भैया भारतीय प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। इस विश्वास को हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एंड इवेंचुअली ग्लोबली हम लोग को लेकर जाना है। उस दिशा में हम लोग को कार्य करना। फूड प्रोसेसिंग 100 जहां हम लोग फूड टेस्टिंग लैब्स आने वाले दिनों में हम लोग लेकर आने वाले हैं, वहीं मैं इस बात की भी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस भी प्रोडक्ट के निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं, गुणवत्ता के साथ कतई कहीं कोई समझौता नहीं है। इस बात को कतई हम लोग हल्के में नहीं लें, क्योंकि इवेंचुअली वो ना सिर्फ आपके ब्रांड की छवि को खराब करेगा, वो भारत की छवि को खराब करेगा, वो भारतीयों की छवि को खराब करेगा। इसको लेकर सबसे ज्यादा हम लोग को सजग रहने की जरूरत है। और इस दिशा में कैसे हम लोग एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे की गुणवत्ता को समझकर, उनके मानकों को समझकर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे म्यूचुअली हम लोग ग्रो कर सकें। मैं बार बार कलेक्टिव म्यूचुअली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जितना हम लोग एक साथ रहेंगे उतनी हमारी नींव मजबूत होगी, और एक मजबूत नींव के ऊपर जब कोई इमारत खड़ी होती है तो उस इमारत को कोई हिला नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। इस दिशा में हम लोग को अपने देश को लेकर जाना है और इवेंचुअली इस लक्ष्य को अपने सामने रखना है कि ग्लोबल मार्केट में कैसे इंडियन ब्रांड्स अपनी धमक बना सके, अपनी प्रेजेंस ना सिर्फ रजिस्टर करा सकें बल्कि ग्लोबली कैसे उस मार्केट में हम लोग छा जाएं। इस लक्ष्य के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं फिक्की का धन्यवाद करूंगा कि समय समय पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के विषयों को एक मंच देने का प्रयास हमेशा से फिक्की का रहा है। इसके लिए मैं फिक्की का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आए हुए इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम साथियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। अभी पूरा दिन आप लोग के समक्ष है। मैं विश्वास रखता हूँ सकारात्मक चर्चाएं होंगी, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आउटकम्स की सोच के साथ हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। और मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आज जो चर्चाएं हों, जो मेरे संज्ञान में आनी जरूरी हो, जो सरकार के पास तक पहुँचनी जरूरी हो, प्लीज शेयर इट विद मी। एंड वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर, फॉर हैविंग मी हियर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकूं और वो कड़ी बन सकूं इंडस्ट्री और सरकार के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।